شاید یہ ان کو نقطہ نہ ملے، لیکن جو آ گئے ان کی جھولی اللہ اپنی رحمت سے بھر دے۔ آج میں وہ بات کروں گا، مجھے اللہ پر یقین ہے کہ پہلے آپ نے کبھی یہ نقطہ نہ سنا، حالانکہ قرآن کی بات ہے، میں نے اپنے مدد سے کچھ نہیں بتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے ترجمہ کرتا ہوں پھر بات کرتا ہوں۔ اے ایمان والے، اے ٹھیک ہے، کتب علیکم الصیام، ذرا سنیے گا، سونا نہیں جاگتے رہنا۔ ہاں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کچھ علماء کہتے ہیں جب ہم تقریر کرتے ہیں لوگ سو جاتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت اترتی ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں غلط بات ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا قرآن سنتے ہوئے جاگتے رہنا چاہیے، اگر کفر کے مقابلے میں جب ہو تو وہاں مست ہونا چاہیے۔ اللہ کا قرآن سنتے ہوئے چکنا خبردار ہونا چاہیے، تاکہ کوئی کام سے ادھر ادھر بات نہ گزرے، شاید وہ قیمتی بات ہو جو ہم نہ سن سکے، جس کی وجہ سے ہماری قسمت سنورنے والی۔ سبحان اللہ۔ اس نیت سے بیٹھنا چاہیے کہ یا اللہ اس آیت کے تمام کا پہلے مجھے عطا کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ ذرا سمجھنا، میں بھی رمضان بیان کروں گا، یہ نہیں ہے کہ کوئی اور بات کروں گا، کیونکہ ماہ رمضان ہے، دوسرا جمعہ ہے، تو میں نے اللہ کا قرآن بیان کرنا ہے اور قرآن رمضان کی شان بیان کرنی ہے، ساتھ ساتھ انسان کی شان بیان کرنی ہے۔ تو فرمایا تم پر روزے میں نے فرض کر دیے ہیں۔ اچھا، آگے ایک اور بات کر دی، کتب علیکم الصیام کے آگے کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں میں نے ان پر بھی روزے فرض کیے۔ اچھا، لعلکم تتقون، قرآن کے حافظوں کو بتا رہنا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تاکہ تم اچھے بن جاؤ، تاکہ تم ایک تاج پہننے والے بن جاؤ، تاکہ تم ایک ڈگری حاصل کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا، بات بڑی قابل غور ہے، جب ایمان نصیب ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، کیونکہ بات اللہ پاک کن سے کر رہے ہیں؟ ایمان والوں سے، کسی یہودی سے نہیں کر رہے، کافر سے نہیں کر رہے، کسی عام انسان سے نہیں کر رہے، اللہ پاک آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں جن کو ایمان نصیب ہو، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر سین کر دیے کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور دنیا میں اگر کسی کی بات مانتے ہیں تو وہ شخصیت کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا تھا کہ تم تقوی والے بن جاؤ، بھائی ایمان ہمارے پاس ہے، جب ایمان نصیب ہو گیا ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، ایمان تمہیں نصیب ہو گیا، ایمان کی دولت تمہیں مل گئی، لیکن بات یہ ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر میں نے روزے فرض کیے ہیں اس لیے تمہاری بھلائی کے لیے، میں نے تم پر ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو کامیاب انسان گزرے ہیں میں نے ان پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ اچھا، یاد ہے یہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ ہم چنگا بھلا کھاتے پیتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، اب تو نے حکم دے دیا کہ بھئی روزہ رکھو، بھئی روزے کی بات کرنی ہے نا، جن کو روزہ نصیب ہے وہ کہیں الحمدللہ، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ گھبرائے نہیں، آج کے بعد روزہ شروع کر دیں، پہلے اگر نہیں رکھ سکے آج کے بعد شروع کر دیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرے در پر آ جاتا ہے تو سر جھکاتا ہے تو دل میں کہہ دیتا ہے، دل میں کہہ دیتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں ان سے صلح کر دیتا ہوں، میں پہلی غلطیاں ساری معاف کر دیتا ہوں۔ جنہوں نے روزہ پہلے نہیں رکھا آج بات کو سمجھیں گے، سنیں گے تو انشاءاللہ میرا دل مانتا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ بھی روزے رکھنے کا عہد کر لیں گے۔ تو پہلے جو روزے رہ گئے ان پر پچھتائیں نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، کیوں؟ یہ میں نہیں ہوں، یہ اللہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی آ جاتا ہے تو پہلے غلطیاں ساری معاف ہو جاتی، آئے تو صحیح، سر جھکانے والا بنے تو صحیح۔ تو آج میں نے کچھ باتیں کرنی ہیں آپ لوگوں سے، تو رمضان شریف کا حوالہ ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اچھا، پہلے لوگ جو کامیاب گزرے میں نے ان پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ اچھا، کیوں کیے تھے؟ کس لیے کیے تھے؟ ارے تمہیں پتہ چل جائے کہ کامیابی حاصل
छोटा ठंडा क्या बन जाऊं? भाई पुलिस में है ना, हवालदार भी है, उधर भी है। अब वो क्या कह रहा है कि ये ऐसे ही बन जाऊं। अच्छा वो कह रहा है मेरे पास करीब भी है, मेरे पास। भाई समझे, ये एक मिसाल को समझेंगे ना तो आपको ये ऐड समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं देसी आदमी हूँ, सादा बंदा हूँ, तो सादी सादी बातें करता हूँ जो समझ में आए। अच्छा वो कहता है कि आप दुआ करें, मैं दुआ के लिए आया हूँ, आप पीर हैं। अच्छा आपके पास तलीम भी है और आप दुआ के लिए भी आए हैं, और क्या काम किया आपने? वो कहता मैंने दिन रात कोर्स किया ASI का, हवालदार तो हूँ ना, ASI बनने के लिए ASI का कोर्स किया है, ठेकेदार बनने के लिए ठेकेदारी का कोर्स मैंने दिन रात अर्थात मैंने मेहनत की है। अच्छा और वो कहते दुआ भी करवा रहा हूँ, तालीम भी है, कोर्स भी किया है, दिन रात मेहनत भी किए, अगर ऊपर नीचे कुछ अफसरों को देना पड़ा तो वो भी दूंगा, लेकिन दुआ तो मैं ऐसे बन जाऊं। हवालदार तो पहले ही है, पुलिस में भी है। अल्लाह से पूछते हैं ऐ अल्लाह तू कह रहा है या युद्दीन आमन, ऐ ईमान वालों डिग्री तो हमारे पास है, ईमान वाले तो हम हैं, क्योंकि हमसे बात कर रहा है ना, तो जो हमसे बात कर रहा है, डिग्री हमारे पास है, जरा सुनिए। और कुतिबा अलैकुम सियाम, ये कोर्स करो। या अल्लाह क्यों करें? या अल्लाह ये कोर्स करो, रोजे रखने का कोर्स करो, तरावी पढ़ने का कोर्स करो, नमाजों का एहतमाम करो, ये कोर्स करो। या अल्लाह ये तो 1 महीने का कोर्स क्यों करवा रहा है? कहता है मैं चाहता हूँ कि जो पहले कामयाब इंसान हुए हैं ना उनमें तुम शामिल हो जाओ, तुम्हारी डिग्री में इजाफा हो जाए। या अल्लाह किस लिए? फरमाया अल्लाह तुम मोमिन हो, तकवे वाले बन जाओ, मोमिनीन हो, मुत्तकीन बन जाओ, अच्छे हो, अच्छे से अच्छे हो जाओ, बेहतर हो, बेहतर से बेहतरीन हो। सुभान अल्लाह। तुम्हारे पास एक डिग्री का और इजाफा है भाई। वो जो आया है दुआ करवाने के लिए, ये ऐसे ही उसने कोर्स किया या नहीं किया? ऐसे ही कहता मैं ठंडा बन जाऊँ, कोर्स तो किया। अच्छा फिर वो कहता मैंने थक दिन रात मेहनत की है पढ़ाई में। अगली बात वो कहता है कि अफसरों को कुछ ऊपर नीचे देना पड़ा तो वो भी दूंगा, वो भी। अच्छा अब अल्लाह तुमसे कोर्स करवा रहा है 1 महीने का, वो कहता भाई कोर्स करो, रोजा ये जरूरी है। जिनको मैंने कामयाब किया, जिनको मैंने आदम अलैहिस्सलाम बनाया, नूह अलैहिस्सलाम बनाया, शीश अलैहिस्सलाम बनाया, दाऊद अलैहिस्सलाम बनाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम बनाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाया, शीश अलैहिस्सलाम बनाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम बनाया, दाऊद अलैहिस्सलाम बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम। मैंने 1,24,000 नबियों को इस काम के लिए चुना और कहा लोगों को कोर्स करवाओ 313 रसूलों की निगरानी में। रसूल कितने हैं? 313। नबी कितने हैं? 1,24,000। नबी से रसूल की डिग्री ऊपर होती है। जो रसूल होता है वो नबी जरूर होता है, जो रसूल होता है वो नबी, जो नबी होता है वो जरूरी नहीं कि रसूल हो, क्योंकि नबी 1,24,000 है, रसूल कितने हैं? 313। समझ रहे हो? 313। तो रसूल की शरीयत चलती है, जरा समझिए, रसूल की क्या चलती है? रसूल का कानून, रसूल का कलमा चलता है, नबी का कलमा नहीं चलता। जैसे एक आदमी MLA तो बन गया, इलाके में वोट हासिल किए, जीत गए, MLA बन गया, कौमी असेंबली का रुकन बन गया, अब वफाकी वजीर बनेगा, अब वजीर बनेगा, वजीर बनेगा तो वजीर कानून बनेगा, वजीर माही और पानी बनेगा, वजीर बिजली का बनेगा, वजीर खुराक बनेगा, कोई ना कोई और उसके जिम्मे होगा। तो जो नबी होता है जब उसको अल्लाह रसालत की डिग्री देता है, रसूल बनाता है, उसके मतहत कई नबी अल्लाह पाक पैदा करता है। सुभान अल्लाह। और हमारा नबी खातमुन नबी जीन है, इसके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। इसके नीचे अल्लाह ने वली मुकर्रर कर दिए, अल्लाह ने वली मुकर्रर कर दिए कि वो दुनिया को समझाएं, दुनिया पर मेहनत करें, उनको बताएं कि जिन्होंने ये कोर्स किया वो कामयाब हो गए, कुरान में उनका नाम मौजूद और अल्लाह के दीन में उनका नाम मौजूद, तरीक में उनका नाम मौजूद, अल्लाह के करीब बंदों में से वो ऊंचे ताज पहन कर आए, इतनी शान वाले बन गए, ईमान वाले तो थे, मुत्तकीन बन गए, तकवे वाले बन गए, मोमिनीन थे, और क्या बन गए? वो मैं बात कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ ना, मैं रिवायत बयान नहीं कर रहा, आयत बयान कर रहा हूँ, कुरान की आयत, कुरान की रिवायत बयान कर रहा हूँ। भाई बोल बोल कर बताइए, मुझे भी पता चले कि मेरे प्यारे बहन मुझसे मोहब्बत से सुनते हैं। इस
किस के साथ सुनते कोई समझना चाहते? सुभान अल्लाह। अच्छा, रिवायत नहीं ये आयत है। और हिदायत का ताज वो पहनता है मोमिनीन के लिए नहीं, मोमिनीन ईमान वाले जरूर होते हैं और मुत्तकीन को मिलता है। मुत्तकीन का अलग मकाम है, उनकी अलग डिग्री। कह रहा है ऐ ईमान वालों तुम पर मैंने रोज़े फर्ज किए और इसलिए तुमसे ये रोज़े फर्ज किए कि पहले भी तुमसे जो गुजरे कामयाब उन पर भी मैंने रोज़े फर्ज किए थे। यानी ये कोर्स तुम करो और पहले भी तुमसे जो कामयाब गुजरे मैंने उनको भी ये कोर्स करवाया। या अल्लाह क्यों करवाया? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम, ताकि तुम तकवे वाले बनो। पूछा गया तकवा क्या है? तकवा क्या होता है? तकवे का माने का पता भी चले तो फरमाया रास्ता हो और खारदार झाड़ियां हो, कांटे ही कांटे हो, उन कांटों से अपनी शलवार बचाकर गुजर जाना, इसको तकवा कहते हैं। ये दुनिया में दुख है, मजबूरियां हैं, हालात खराब हैं, तरह तरह की मजबूरियों के संगल पांव में डाले हुए हैं लोग, अपनी मजबूरी के तहत अपनी रोटी कमाने के लिए मुश्किल में पड़े हुए हैं। ये सारे के सारे कांटे हैं, ये सारे के सारे तो कांटों का रास्ता है। इनसे बच बचाकर फिर अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना मुत्तकी कहते हैं। सुभान अल्लाह। अब तकवे की समझ भी आ गई। ईमान वाले तो थे, फरमाया मैंने तुमसे ये अभी मैं कहूँ ना कि तुम पर रोजे फर्ज किए, पहले लोगों पर भी रोजे, ऐसे चस नहीं आती, मजा नहीं आता। समझाना पड़ता है कि जो कामयाब इंसान दुनिया में गुजरे हैं उनसे भी मैंने ये कोर्स करवाया था और तुमसे भी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें भी उन लोगों में शामिल कर दूं। सुभान अल्लाह। जहाँ वो ताज बांध कर बैठे होंगे कुर्सियों पर, वहां तुम भी बैठे होंगे। पूछा जाएगा ये लोग कौन है? नबी हैं? नहीं नहीं, ये नबी नहीं, ये रसूल हैं? नहीं ये रसूल भी नहीं है। ये क्या अल्लाह के वली हैं? नहीं वली नहीं है। अरे बाबा क्या है? नबियों के बराबर बैठे हैं कुर्सियों में, नूर के ताज पहनकर। ये क्या है? फरमाया जाएगा बात ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने यही कोर्स किया था जो इन्होंने किया। नबी के बाद को नबी तो आना नहीं था, ये कोर्स करते रहे। आज इनका ये मकाम है कि जो नबी रसूल खा रहे हैं वो ये खा रहे हैं, जो वो पहन रहे हैं ये पहन रहे हैं, जहाँ वो बैठे हैं वो जहाँ वहाँ ये बैठे हैं, जिन जैसे उन पर रहमत उतरती ऐसे इन पर उतरती। ये कोर्स का अच्छा आप बताओ, ये कोर्स जो हमारे जिम्मे लगाया गया है ये पहले लोगों से भी करवाया गया, ये कोर्स करना चाहिए। वो तो कह रहा था दुआ करो, मैंने दिन रात थक मेहनत किए, कोर्स भी किया है कि ऐसे माध्यम हवादार तो डिग्री तो है लेकिन जरा ऊंचा दर्जा मिल जाए, जरा ऊंचा। अच्छा फिर वो कह रहा था कि ऊपर नीचे कुछ देना पड़ा तो वो भी। अच्छा कभी हमने सोचा कि हम कोर्स तो कर रहे हैं, किसी को रोजा फरमाएं, किसी को रोजा छुड़वाएं, ऊपर नीचे कुछ देना चाहिए? नीचे देंगे ऊपर वाला राजी होगा, नीचे देंगे ऊपर वाला राजी होगा। कुछ देना तो पड़ता है। गरीब है, कमजोर है, मजबूर है, लाचार है, निजार है, बेकरार है, आवाजार है, कुछ भी है, लेकिन कुछ तो भाई कोर्स कर रहे हैं, कुछ तो देना पड़ता है। बात समझ में आ रही? नीचे वालों को खिलाएंगे ना ऊपर वाला राजी होगा, ऊपर वाला क्या होगा? अच्छा मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा मेरे प्यारे एक बात करता हूँ, आज सोचते सोचते सहरे के वक्त एक बात दिन में आई। जो समझदार औरत होती है जरा गौर से, वो अपने घर से दूसरे घर में चली जाए, तीसरे घर में चली जाए, अपनी बस्ती से दूसरी बस्ती में कहीं काम चली जाए। अच्छा उसका बच्चा खीर खा है, दूध पीता है, तो अगर समझदार है, अगर बात समझदारी की, अगर समझदार है, अकल रखती है, तो कुछ देर के बाद वो कहेगी मेरा बच्चा रो रहा है, बस जरा प्यार से सुनिए,
सुभान अल्लाह। अरे बाबा हमें तो उस बच्चे की तरह रोना ही नहीं आता। वो रो रहा था घर में, माँ कहीं और थी, दूध उधर छलक रहा था, वो कह रही मेरा बच्चा रो रहा है क्योंकि मेरा दूध छलक रहा है। फिर बात समझ में आई? अगर हमें रोना आ जाए तो अर्श वाला खुदा अर्श से हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। जो माँ का दूध छलका सकता है वो हमें रिजल्ट नहीं दे सकता, वो हमारी मुश्किलें हल नहीं कर सकता। हमें रोना तो आ जाए, हमें भाई मेरी बात समझ रहे हो? रोना तो आ जाए, सुभान अल्लाह। तो रोना नहीं आता। हम तो दुनियादारी के कामों में रो पड़ते हैं, यार मेरी बहन ने मेरे साथ ज्यादती की, मेरे बाप ने ज्यादती की, मेरी बहन ने, मेरे भाई ने, औरत रो रही, मेरा खामिद अच्छा नहीं। जरा एक और बात बताऊं, आज गुर की बात, हम लोग कुरान को क्या समझेंगे? हम तो आम अल्फाजों को नहीं समझते, आम अल्फाजों को। मुझे ना कसूर में मैंने बात किया तो वहाँ एक वकील साहब थे, वो खड़े हो गए और रोने लगे, कहने लगे कि तुम्हें तो चाहिए असम्बली में तकरीर करो, तुम इन बात लोगों को तकरीर कर रहे हो जिन बेचारों को कुरान ही नहीं आता, इनको क्या समझ के तुम क्या सुनते हो? मैंने वहाँ बात की, क्या कौन सी की? मैंने कहा मोहब्बत और फितरत और है, मोहब्बत और फितरत और है। जरा बात को समझो, मोहब्बत तकाज़ों की मोहताज है, फितरत तकाज़ों की मोहताज नहीं। अच्छा उसकी मिसाल दूंगा तो आपको समझ आएगा। किसी की पीर के पास भाई चली गई, बहन चली गई, बेटी चली गई कि मेरा खामिद अच्छा नहीं, घर सुनिए मेरा खामिद, बात को सुनिए, घरों में समझाया करो, ये बातें सुनो, घरों में समझाया करो, मेरा खामिद अच्छा नहीं। अच्छा बेटा क्या चाहते हो? तवीज़ लेने। अच्छा क्या चाहती हो? वो अम्मी अबू की बात नहीं मानता, मेरी नहीं मानता। जब बात को समझो, अम्मी अबू बात मानता, मेरी नहीं मानता। अच्छा हूँ अब अभी बात समझने कीजिए कि माँ बाप से मोहब्बत करना ये है फितरत, ये है। आज बागी होगा नहीं समझेगा, जब चोट लगेगी तो जरूर माँ बाप याद आएगा। वो थी फितरत, बीवी के साथ थी मोहब्बत। मोहब्बत तकाज़ों की मोहताज है, अगर बीवी के तकाज़े पूरे करता रहा तो बीवी रही खुश, वरना छोड़कर भाग गई। माँ बाप से मोहब्बत करना मोहब्बत नहीं, वो फितरत है। तुम मोहब्बत करो ना करो, माँ की ममता, बाप की मोहब्बत किसी वक्त भी जा सकती। अगर तुम उनको मनाने के लिए नहीं जाओगे तो कोई मौका आएगा तो वो रोकर कहेंगे क्या करें, समझाया बहुत, यारे हमारा बेटा मानता नहीं, क्या करें, कोई दुआ करे उसकी समझ में कोई बात आ जाए, अरे वो तवज्जो नहीं कर रहा, इधर फिर भी मोहब्बत का दरिया बह रहा है। ये है फितरत, ये है। अच्छा अगर मैं नुक्ता बताना चाहता हूँ, अगर हमें दीन समझ में आ जाए, कुरान समझ में आ जाए, सबको पता चल जाए कि फितरत जो होती है वो हर हाल में जागती रहती है, वो तकाज़ों की मोहताज नहीं, मोहब्बत जो है वो तकाज़ों की मोहताज है। जरा बात समझिए। अच्छा फिर कोई औरत तवीज़ लेने के लिए जाएगी खामिद के खिलाफ, उसको पहले पता होगा कि माँ बाप से मोहब्बत करना फितरत है। अगर मैं जादू टोने करवा के खामिद को मतहत कर भी दूं तो हो सकता है कि उसका दिमाग काम करना छोड़ जाए, ना उनके काम का ना मेरे काम का। बातें को समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह। फितरत और है मोहब्बत, मोहब्बत तकाज़ों की मोहताज है, फितरत तकाज़ों की मोहताज नहीं। अच्छा एक और मिसाल दूं ताकि समझ में बात आए। फारसी का जो मकूला है, जबले गारत जबिल्लत नगारत, कोई कहे कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया, ये तो बात मान लो, हालांकि मानने की नहीं, क्योंकि पहाड़ का हिलना मुश्किल है, फिर भी मान लो। अगर कोई कहे कि उसकी फितरत बदल गई तो ये मानने में नहीं आएगा। मसलन जो लोग कुफर में खालिद बिन वलीद जंगो जदल करते थे, बड़े जंगों के माहिर थे, जब इस्लाम में आए तो कुफर की मोहब्बत दिल से खत्म हो गई, दीन की मोहब्बत आ गई, काम वही करते रहे क्योंकि उनकी फितरत थी जंगे करना, फितरत अपना काम करती रही, मोहब्बत बदल गई। मोहब्बत फितरत अपना काम। अच्छा अगर हमारी समझ में ये बातें आ जाए, हमारी बहनों को, हमारी बीवियों को, हमारी बच्चियों को, हमारी घरवालियों को वो ये बात समझ में आ जाए कि फितरत नहीं बदलती, मोहब्बत बदल जाती है, फितरत लाजवाल और बाकमाल है और मोहब्बत तकाज़ों की मोहताज है।
किताबें पढ़ते हैं, निसाब में, दीन में ये शामिल हो जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चे पहले से लेकर आखिर तक ये पढ़ें और बच्चियां पढ़ें, जब पढ़कर घरों में आएंगे तो फिर वो ऐसे काम करेंगे जो इस्लाम के खिलाफ है। नहीं, लेकिन कौन समझाए, कौन कहे, कौन बोलने वाला हो, कौन बताए कि ऐसी बातों बच्चों को तरबियत दी जाए। अगर बच्चों के ज़हन में फितरत और मोहब्बत का फर्क होता तो शौहर के खिलाफ कभी कभी लेने न जाते। बात समझ में आ गई? क्योंकि उनको पता होता कि माँ बाप से मोहब्बत कर रहा है, मेरे से मोहब्बत कर रहा है, माँ बाप की मोहब्बत फितरत है, किसी वक्त भी जाग सकती है, तो मैं ऐसा कदम ना उठाऊं। मैं ऐसा कदम, अगर मैं कोई खिलाफ काम करूंगी दीन के खिलाफ, तो ना मेरे काम का रहेगा ना उनके काम का, बेकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बात समझ में आ रही? अच्छा, दूध वाली बात भी समझ में आ गई, ये फितरत और मोहब्बत वाली बात भी समझ में आ गई। अच्छा, एक और बात, ये बात वही कर रहा हूँ, क्या ईमान वालों, तुम मैंने रोजे फर्ज किए, तुमसे पहले जो लोग गुजरे हैं उन पर भी रोजे फर्ज किए ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। भाई हर जाइए ना, उसी के मुताबिक बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, तो मेरे प्यारे, ये कुरान की आयत का तर्जुमा। अच्छा, असल बात ये नहीं है रोजे, असल ये था कि ये कोर्स मैंने उनसे भी करवाया जो पहले गुजरे हैं, और मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद का नौकर कोई पीछे न रह जाए। जब क़यामत का दिन आए तो ये पीछे पीछे न खड़ा हो, ये वहां बैठा हो जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे हो, सुभान अल्लाह, ये वहां बैठा हो जहां नूह अलैहिस्सलाम बैठे हो, इसको वही खाना मिल रहा हो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खा रहे हो, सुभान ये अल्लाह, पीछे न रह जाए। ये कोरस है, ये क्या है? अरे वो तो हमसे समझदार निकला, जो हवादार था वो दुआएं करवा रहा था और ऊपर नीचे कुछ न कुछ खर्चा देने के वादे भी कर रहा था कि देना पड़ा तो मैं दूंगा, देना पड़ा तो। लेकिन बात ये है कि कोरस भी किया है, दिन रात मेहनत की, दुआ करो कि कहीं वो डिग्री मुझे ऐसे की मिल जाए। अरे हम ईमान वाले तो हैं और तकवे वाली डिग्री हासिल करनी चाहिए कि नहीं? सुभान अल्लाह, हमें मेहनत करनी चाहिए कि नहीं? तो फिर रात दिन मेहनत यही है ना कि रात को तरावी पढ़ो, दिन को रोजा रखो। जो पहले नहीं रख सके, जो पहले, तो उनको तो खुदा वादा कर रहा है कि मैं माफ कर दूंगा, आप आज से तैयारी कर लो, आज से तैयारी कर लो। पहले माफी हो गई, यार मुझे पता नहीं चला, मैं भूल गया था, आज आया हूँ, मेरा आना कबूल कर ले, आज आया हूँ, मेरा आना कबूल कर ले, मेरे अल्लाह मेरी खता मुझे माफ कर दे। ये सजदे में सर झुकाता है, तो किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, जब ये सजदे में सर झुकाता है, जमीन पर रखता है, इसका क्या मकसद है? अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया, ये जमीन पर सर रखता है, अल्लाह इनके रुतबे अर्श से ऊंचे कर देता है। सुभान अल्लाह, बात समझ में आ रही? अच्छा, आप पता चला कि ये रोजा और ये नमाज और ये तरावी, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हम करते हैं तो अल्लाह पर एहसान करते हैं, ये तो कोरस है, कोरस है। जिन्होंने कोर्स नहीं पहले किया, जो नहीं कर सके, वो आज आ जाएं, वो आज आकर इस कोर्स में शामिल हो जाएं। अल्लाह पाक पहले गलतियां माफ कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही? सुभान अल्लाह, उस हिसाब से इसका तर्जुमा करूं। दुरूद पढ़ो नमाज वाला मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बात ये है कि आज समझ में आया कि ये तरावियां, ये रोजे, ये हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये तो कोरस बताया गया कि ये कोरस करो ताकि तुम्हारा ओहदा हो। अगर ओहदा नबी रसूल तो नहीं मान सकोगे, नबी रसूल तो, क्योंकि आखिरी नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, लेकिन नबियों के बराबर जरूर बैठ जाओ। जो खाना उनको मिलेगा वो मिलेगा, जो कपड़े उनको मिलेंगे वो मिलेंगे, जन्नत में जहाँ वो रहेंगे वो ही मकाम मोहम्मद के नौकर का होगा। तो ये है कोरस। ये क्या है? अच्छा, किसी काम को पढ़ाई के लिए, वो बेचारे की बात मुझे याद
मदद के लिए। मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार तुम्हारे हवालदार है, पुलिस में है, दिन रात मेहनत की है और साथ दुआ करवाने के लिए आ गया, फिर कहता है कि मैं ऊपर नीचे कुछ देना पड़ा तो वो भी। अरे हम कोरस करें, रोजा रखें, तरावी पढ़ें और हम जो है ये कोशिश करें कि नीचे वालों को कुछ न कुछ दें। किसी के घर में तहकीक करनी पड़ती है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे जिनको तलाश करो वो मांगते नहीं, हकदार हैं, मांगते नहीं हकदार हैं, उनको तलाश करो, उनके घर में पहुंचाओ जो तुम्हारे पास हिम्मत है, जो तुम्हारे पास ताकत है, इशारा कुर्बानी है, हमदर्दी है। कोरस के साथ साथ ये जरूरी है, वो कोरस तो कर रहा है ठक, लेकिन ऊपर नीचे देने की मेहनत भी कर रहा है कि नहीं कर रहा? भाई हम कोरस कर रहे हैं, तरावी का रोजे का कोरस कर रहे हैं ताकि हम मोहम्मद अरबी अल्फाज जो है वो खुश हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, नबियों के बराबर हमें सीट मिल जाए। कभी आपने सोचा कोई एमपीए एमएनए असेंबली में किसी अपने नौकर को ले जाए ना, वो कहते यार मेरा असेंबली जाना जाना है, मैंने पता उसे की होता है, तो जो नबियों के बराबर कुर्सी जिसको मिलेगी उसका मकाम थोड़ा कम है। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही ना? सुभान अल्लाह। तो इसके साथ साथ ये कोरस का हिस्सा है, नीचे वालों को देना, ऊपर वाले को खुश करना। ये कोरस का रोजा रखना, तरावी पढ़ना, नमाज का इत्माम करना, मस्जिद की देखभाल करना, जबान को कंट्रोल में रखना, हाथ को कंट्रोल में रखना, दिमाग को कंट्रोल में रखना, दिमाग कंट्रोल में हो, गलत बात न सोचे, हाथ गलत काम न करे, जुबान गलत अल्फाज न बोले, पाँव कहीं गलत कर न जाए, ये सारी चीजों का रोजा होता है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, आप इतने अच्छे लोग हैं, हमें तो चाहिए कि हम तुमको कुरान की आयत का सही तर्जुमा बताएं। आज पता चला कि ये रोजा और नमाज और तरावी ये तो कोरस है, हम करेंगे तो हमारा फैल है। सुभान अल्लाह। ये कोरस एक महीने का कोरस है। अच्छा, अब पता आप कोरस करने को दिल भी करेगा कि यार मैं भी कोरस करूं। जिंदगी का तो पता नहीं है, जिंदगी तो ऐसी है कि लोग कहते यार फलां शख्स बहुत यार तुम्हारा घर तो कैसे, कल तो मेरे साथ बात कर रहा था यार, अचानक रात को 2 बजे कुछ हुआ, बस अस्पताल में ले गए हैं और अस्पताल वालों ने बताया ये तो खत्म हो चुका है। अल्लाह अकबर। अरे बाबा जिंदगी का तो पता नहीं है, आज ही अल्लाह से वादा कर लो कि हम इस कोरस में शामिल हो जाएं इंशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है और आसानी के साथ आ रही है। कुरान समझ में आ रहा है ना, अल्लाह का कुरान कैसा है। बातें करने को बहुत है, बात लंबी ना हो जाए, बातें करने को बहुत है, बातें करने को जी चाहता है कि ऐसी ऐसी मिसालें दूं, कुरान का तर्जुमा ऐसे बयान करूं ताकि हम लोग जो है हमारी समझ में ये बात आ जाए। आज एक बात समझ में आई कि वो कहीं समझदार खतून फिर रही थी, उसको वहां पता चल गया बच्चा रो रहा है, पूछा गया तो उसने कहा मेरा दूध छलक रहा है। अरे हम रोएंगे तो अर्श वाला खुदा जो है वहाँ उनको रहम आएगा, वो हमारी खतरे माफ कर देंगे। सुभान अल्लाह। हवालदार आया तो वो ऐसे के चक्कर में है, वो कहता है मैं दिन रात अनथक मेहनत कर रहा हूँ। हाँ जी, वो कहता है मैं रात के 3 बजे तक पढ़ता रहा, अपनी नींद खराब की, तरावी के लिए तो घंटा 1.5 घंटा निकालना पड़ता है। ये तो कोरस भी आसान है, ये तो कोरस भी। अच्छा, अब इस कोरस में शामिल होने का इरादा है इंशाअल्लाह। लोग शर्मिंदा ना हो जो आज तक तरावी नहीं पढ़ सके, रोजा नहीं रख सके, किसी को रोजा खुलवा नहीं सके, छुड़वा नहीं सके, रखा नहीं सके, वो परेशान ना हो, आज ही कोरस में शामिल हो जाए। अभी नामा रोजा है, पहले असर में 1 दिन बाकी है, पहले असर में 1 दिन बाकी, 10 दिनों का असर होता है, पहले असर में 1 दिन बाकी है। तो आज हम मेहनत करेंगे, आज इरादा कर लेंगे तो पीछे वाले रोजे जो है वो अल्लाह अपनी रहमत से पूरे कर देगा, पीछे वाली तरावियां अपनी रहमत से पूरी कर देगा। बहरहाल बात अगर छेड़ूं तो बात लंबी हो जाएगी। दिल करता है कि करते 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 मौत आ जाए, लेकिन वक्त को भी देखना पड़ता है। और ये भी डरता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज्यादा बातें करने से कुछ बातें वो भूल जाते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो कुछ मैंने बयान किया मेरे साथियों को ये समझ भी आए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी यही दुआ है। मिसालें तो बहुत हैं दूंगा,
ترجمہ کروں تو عجیب حیران ہو جاؤ گے، اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ ٹائم اگر کچھ ہے بھی تو کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔